Namaskar and a very warm welcome to everyone joining us today. Respected Director of Dakshi, Shri Akshat Kumar Bhadoria ji, esteemed Speaker Dr. Vivek Tripathi ji, distinguished member of Dakshi, respected guests, and all the enthusiastic participants, my heartfelt greetings to all of you. As the Rig Veda reminds us, Ano Bhadraha Kratvo Yantu Vishvataha. Let noble thoughts come to us from every direction. It is in this very inquiry, learning, and intellectual exploration that we gather today for another enriching session under the banner of Dakshi. Dakshi, disclosing the ancient knowledge system and heritage of India, is a movement dedicated to reconnecting contemporary societies with the rich intellectual traditions of Bharat through dialogue, research, critical inquiry, and meaningful engagement with knowledge systems. It seeks to bridge the wisdom of the past with the challenges and opportunities of the present. Before we proceed further, I would like to extend my warm and respectful welcome to the visionary behind this movement, the founder and director of Dakshi, Sri Akshat Kumar Bhadoria ji. Sir, your dedication towards nurturing a culture of knowledge and creating platforms for meaningful intellectual discussions continue to inspire students and researchers across the country. We are honored by your presence today. Before beginning today's academic journey, let us invoke the blessings of Ma Saraswati, the embodiment of wisdom, learning, creativity, and enlightenment. Knowledge has always been regarded as the highest purifier and the brightest light in Indian civilization. To offer this sacred invocation, I warmly invite Prachiji to present the Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Prachiji, for that beautiful and soulful invocation. May the blessing of Ma Saraswati guide all our thoughts and endeavors throughout this session. Now, as we begin today's session, research is not merely the pursuit of answers, it is the art of asking meaningful questions. Every remarkable thesis, groundbreaking paper, and transformative ideas begin with well formulated research proposals. Today's session is particularly significant for students, scholars, and aspiring researchers because it addresses one of the most crucial aspects of academic life, the PhD roadmap, how to write a winning research proposal and paper, a topic that goes beyond technical writing and helps us understand how ideas are transformed into impactful research. Now, to guide us through this journey, we are privileged to have with us an accomplished scholar whose academic journey itself reflects the power of interdisciplinary research. We are honored to introduce our speaker, Dr. Vivek Tripathi, senior researcher at IIT BHU Varanasi. Dr. Tripathi brings a uniquely interdisciplinary background to his work, holding a PhD from the Department of Humanities at IIT BHU, an MTech in Geoinformatics from IIT Bombay, and an MA in Hindi Linguistics from the MGAHB Wardha. His research sits
at the intersection of theoretical linguistic and computational logic, where he leverages formal frameworks including predicate, temporal, and type logics to develop parsing tools and grammars for Indian languages. His pioneering contributions have earned significant national acclaim, including being named among the top 10 AI posters presented to Prime Minister Narendra Modi at the ESTIC 2025, taking first prize at the nationwide Swachhata Ideathon 2024, and receiving the Interdisciplinary Best Research Award from IIT Jodhpur and IIT Indore. Thank you, sir, for joining us today. On behalf of the entire Dakshi family, it is my privilege to welcome you and invite you to deliver your lecture on the PhD roadmap, How to Write a Winning Research Proposal and Paper. Sir, the virtual platform is all yours. Thank you so much, Ritika. Hopefully, everyone has a clear audio feed from my end. Can I have a quick check? Thank you, Monica. And that was really a nice stotra, and I really loved that vibe and that energy. So, huge thanks, and thank you for this opportunity where I can share and interact with new young people and researchers in the academic field. I guess I'm going to have mix of audience over here. So, before starting, I just wanted to tell you that, okay, I have completed my PhD. I'm no more a research scholar. And today I will share my research experience from there. And specifically, I will help you understand what research actually means and how you can present it effectively, because these days we have something called as a narrative research. That means how you can build a narration through whatever you are doing. Okay. And in this discussion, I'm going to keep it very crisp and short. Want to keep it as much interactive as I can. And if Akshit is present over here, I would be happy to take some questions from him and also from you guys, because it's been a long motivation of me that Akshit is doing something like that. And so before starting anything, definitely I'll share my PPT. First, tell me whether you guys are comfortable uh, in keeping this presentation interactive, or you just want to listen the whole PPT and then want to ask questions and all. What do you want? I guess maybe we can. Interactive. Uh, Okay, Sefali. First comers always get the benefits. I'll keep it. I'll keep it interactive, and also I'll keep my PPT. Like I'll share my deck with you. And second thing, I feel that mostly when I was interacting with different people, because previously I have given many talks, and there I realized that particularly for Indian audience, bilingual setup works more. So will you be comfortable with that? Like me switching between English and Hindi, or do you want me to keep uni or one? Someone is saying something. Do you want me to keep it bilingual? Everyone comfortable with that? Oh, thank you, Tina. Okay, so before starting, I want to know uh, what do you think a research is? Like, if you want to know what is the best snack in the canteen wherever you are studying, what would you do? I will eat like
I will try eating. Like there are two things I can do. First of all, I can go to seniors who are already studying there and ask them that do what is it that they like the most. Second, I can ask the person selling it that what is the best selling thing out there. And even if I don't like it, then I'll try something else and then I'll make my own opinion. Yeah, that was a really nice quantitative plus qualitative approach. So the first approach, generally the kids do that. They will say, "Oh, we will test all of them," but that is not what research is intended for. And second case, when you go to the people and you ask them, it's more like an informed survey which you are doing. Because if the people who are there are the regular visitors, they will not give you the real idea. So we have to have a mixed sample. So what is the general thing? Masters. So if you are doing your masters or if you are doing your PhD, what they will do? What is the different thing they will do? They will ask people who are the different stakeholders. What is the meaning of stakeholders? कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग कभी कभी आएंगे, और कुछ लोग डिफरेंट एज ग्रुप से डिवाइडेड हैं. So what they will do, they will ask all the people, make a survey, and then they will compare not the test. What they will do, they will prepare a contrastive study between the price and the test, and then only they will be able to come up to the conclusion that okay, this snack is the best in the canteen. So the research is not about finding the different questions related to the field, but research is about finding the method of dealing a particular question. And the more common a question can be, the more relatable your research will be. Okay. So here I'm going to share my PPT and show you the thing which I'm going to talk about, the agenda for today. Akshit told me to talk about the PhD roadmap. But this is a very broad topic, I would say, because when you say PhD roadmap, you do a lot of things. You write research proposals, you write articles, you write chapters, you write different projects. And trust me, all of them have the different method of presentation. Okay. So, and even it also divides on the basis of, suppose you want to do a research paper, but when you are at the institute where humanities is something which is of a significant thing, the whole method, the model of doing the research changes. वहीं जब आप engineering and technology में जाते हैं, then things change. So it also depends upon the domain. So for today's session, I'm going to keep one topic that is in the PhD roadmap. I'm going to specifically talk about writing the research proposals. Maybe I'll reserve some other day for writing projects, for writing chapters, and for writing articles. Even in the articles, we used to write. So there are different type of article. Either you are writing technical papers, you are writing resource description paper, you are writing study paper, you are writing cultural application paper, you are writing position paper, and all of them have different method and the model of presentation. So when I say winning research proposal, I specifically means you are a student who is willing to get the admission in some particular institute, and you want to know how I can present my idea so that I can confirm my admission over there. So if this thing interests you, then this presentation will help you for sure. But if you are looking for something else, then आप मेरे से इंटरेक्टिव डिस्कशंस में पूछ सकते हैं, और अगर बड़ा होगा तो हम लोग उसे किसी और दिन के लिए रखेंगे. बट आज का डिस्कशन सिर्फ इस पे है कि एक रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, व्हाट वर माय पिटफॉल्स, मैंने क्या अपने रिसर्च जर्नी में सीखा, कहाँ कहाँ मैं फेल हुआ, और रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त किन किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है. तो स्टार्ट करने से पहले किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं डिस्कशन के दौरान आई कैन टेक देम, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट any particular topic in this slide, I can take them.
कोई क्वेश्चंस हैं आपके? भैया जी, generally people used to have questions regarding literature review, regarding how to read the sources to frame out something, some narratives or something like that. So we can talk on those aspects also, literature review, methodology, from where we have to collect the sources, kind of thing. Okay. So आज के एजेंडा में I'll cover that Akshit for sure because I have a discussion on that. पहला समझेंगे कि किसी भी प्रपोजल का एनाटॉमी क्या होता है. What constitutes, what points constitutes a strong proposal that would fetch you the admission in the particular college you are looking for. Second thing I will talk about common pitfalls. Like अभी आप टेबल के इस पार हैं जहां आपको नहीं पता, आप बस सब कुछ बता देना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड के बारे में ये पढ़ के आया हूं, मुझे ये क्वेश्चन पता है और मैं इसका आंसर करना चाहता हूं अपने रिसर्च में. बट कमिटी को वो नहीं जानना है. कमिटी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आइडिएशन के साथ बैठी हुई है जब आपको एनालाइज कर रही है. तो हम उसके बारे में भी समझेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कमिटीज, जो भी आपकी सिलेक्शन कमिटी है, वो जानना चाहती है. एंड थर्ड थिंग, द प्री सबमिशन चेकलिस्ट. So here, these are the things which you have to check whether you are applying for any college outside India or आप IITs या NITs या किसी इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं. सबसे पहले आते हैं एनाटॉमी में. ये Am I audible? Okay, thank you. So please let me share the screen once again. I hope you can see it. तो सबसे पहले आते हैं कि किसी भी रिसर्च को फ्रेम करने के लिए, रिसर्च आप कर सकते हैं, सबको पता है, एंड दिस अप्लाइज फॉर एनी अदर कैंडिडेट्स एज वेल. बट उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग विच डिसाइड्स द गेम. प्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो कमिटी आपके प्रपोजल को पढ़ रही है वो इसी स्ट्रक्चर में आपको इवैल्यूएट करेगी. आपने किसी भी सेक्शन में उस पर्टिकुलर आइडिया को वैसा अगर फ्रेम नहीं किया है तो ये सिर्फ एक ही चीज के तरीके से साउंड करेगा, दैट यू आर नॉट श्योर व्हाट यू वांट टू डू. तो हर एक सेक्शन में, even if you are writing one line, you have to make sure that it is contributing to the whole plan. Okay? इसलिए इसको हम लोग रिसर्च प्लान बोलते हैं और प्रोफेसर्स भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपका रिसर्च प्लान क्या है. तो सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में इसको देखते हैं, डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट अगले 5 मिनट बाद देखेंगे. सबसे पहले टाइटल में दो चीजें होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और सर्चेबल होना चाहिए. सर्चेबल कहने का मतलब ये है, बहुत ही बेसिक, these days it's not about what you are willing to present. These days the things are कि आप जो बड़ा विजन है उससे अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. जैसे मैं पानी साफ करने का काम करना चाहता हूं,
मैं एक ऐसा रिसर्च करना चाहता हूँ जिससे जल साफ हो जाए। अभी मैं रिसेंटली गंगा के एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था, इसलिए दैट्स हाउ दिस एग्जांपल इज कमिंग। तो उसमें मेरे को ये नहीं बताना कि आई एम गोइंग टू फाइंड अ रिसर्च, इट विल बी देयर इन द लेटर पार्ट, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल, टाइटल में आपको उसको रिलेट करना है एक ऐसे आइडिया से जो रिसर्च कम्युनिटी के लिए एक सर्चेबल आइडिया हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप इवन पेपर में देखते होंगे उन लोग एक वर्ड यूज करते हैं रेजुविनेशन, और भी वर्ड है, क्लीनिंग क्यों नहीं यूज करते, रेजुविनेशन क्यों यूज करता है। तो हर एक फील्ड के अपने उस डोमेन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स को आप टाइटल में यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे 7 कीवर्ड्स, एवरेज है 7 का, 7 कीवर्ड्स, 5 to 7 कीवर्ड्स दिए जाते हैं। एक स्मार्ट रिसर्चर क्या करता है, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करता है कीवर्ड्स में लिखने के लिए, और उन्हीं में से 1 या 2 कीवर्ड को यूज करता है अपने टाइटल को बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। एक स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट में 150 से 250 वर्ड्स होते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो वो मेथोडोलॉजी बन जाएगा, इससे ज्यादा आप लिख रहे हैं तो वो लिटरेचर रिव्यू बन जाएगा। बेस्ट आइडिया जनरली मैं क्या करता हूं, चाहे वो चैप्टर हो चाहे किसी भी टाइप का पेपर हो, रिसेंटली आई वाज राइटिंग अ पोजीशन पेपर, वो पोजीशन पेपर ऐसा है कि उसको हम 300 वर्ड से लेस में लिख ही नहीं सकते हैं, बट अगेन बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट है तो हमको उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। 150 से 250 के बीच में स्टैंडर्ड फिगर है, आप 200 वर्ड्स का रख सकते हैं। इसमें क्या होती है, वेरी बेसिक सेटअप, जिसे हम लोग बोलते हैं पैक, पैक मेथड यूज करते हैं। पैक क्या है, प्रॉब्लम, अप्रोच, कंट्रीब्यूशन। सो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के मेरे को ये 3 चीज पता चलनी चाहिए, PAC, प्रॉब्लम क्या था, अप्रोच आप क्या लेंगे, अप्रोच में भी कैसे अप्रोच होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और सी कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग लिखते हैं इन दिस पेपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, एंड देन फिर बीच में कहीं अप्रोच आता है और लास्ट में बोलते हैं कि हमारा ये कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन क्या है, दे आर नॉट टेलिंग द कंक्लूजन ऑफ द पेपर, दे आर टेलिंग द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। ठीक है, फिर आता है पूरे बॉडी का, जो भी आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं उसका मेजर पार्ट, लाइक आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को हेड मान सकते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट को इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट समटाइम इट्स नॉट, पर्टिकुलरली जब आप स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लिख रहे होते हैं तब टाइमलाइन, या जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट का मतलब मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं जो एक 2 यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है, तो वहां पास आपको एक टाइमलाइन मेंशन करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल है। तो मान लीजिए 3 से 6 तक आपका बॉडी हो गया, रेफरेंसेस लेक्स हो गए। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन में यू एस्टेब्लिश द गैप एंड यू स्टेट द रिसर्च क्वेश्चन। समटाइम्स यू मे हैव 1 क्वेश्चन और समटाइम यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। देन कम्स लिटरेचर रिव्यू। दिस लिटरेचर रिव्यू पोजीशंस योर वर्क अगेंस्ट व्हाट्स ऑलरेडी नोन। ठीक है, आप कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं क्लेम कर सकते जिसमें आप यह कहें कि मैं पर्टिकुलर काम कर रहा हूं और इसमें 20 साल पहले काम हुआ था। ये स्टेटमेंट देने के लिए आपको आइंस्टीन लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये नियर टू इम्पॉसिबल है, भले वो पब्लिश्ड हो ना हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हमको ऐसे क्लेम करना पड़ा था कि कुछ अननोन वर्क हैं जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया था, और उस अननोन को हम साइट नहीं कर सकते, बट दिस इज द बेसिस फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग। बट मेक श्योर कि इस तरह के क्लेम कि 20 साल पहले, 50 साल पहले और आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट, इस तरह के क्लेम्स बहुत ही वेग होते हैं, ऐसे क्लेम्स कभी नहीं होने चाहिए। तो आपके लिटरेचर रिव्यू में आपको ये एस्टेब्लिश करना कि उस डोमेन में क्या क्या काम हुआ है। Then comes methodology. Methodology is very straightforward. You provide the design, you provide what data you are collecting, how you will analyze them, and what it is answering. Right? Statistics, when you are doing statistics, you have to tell why these numbers are important. You just don't present them. You present the significance of those numbers. Okay? एंड देन फिर टाइमलाइन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट या पेपर या प्लान किस टाइप का है। अगर है तो यू हैव टू शो वेदर वर्क इज फिजिबल इनसाइड द फंडिंग पीरियड और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी में फंडिंग पीरियड 5 साल का होता है, आप करने को अपना रिसर्च 10 साल तक कर सकते हैं।
बट वैसा रिसर्च और वैसे रिसर्चर्स generally institute, they never look for them. Okay. And then references, it has to be complete. There are different standards of writing references. We will talk about them, जिन्हें हम citation styles बोलते हैं. उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे. चलिए अब शुरू करते हैं. आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि एक रिसर्च कैसे बनता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. अब एकदम ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आपको अगर टाइटल लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षित ये कर सकता है कि आप लोग सब ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, आप इसमें से अपने मूवमेंट से रिलेटेड या अपने कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को चूज कर सकते हैं और ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करना. एक एक लाइन में टाइटल होगा तो मेरा ये होगा, मेरा एब्स्ट्रैक्ट होगा तो मैं इसके बारे में. सो बहुत ही एक बेसिक एक आप अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स that will be discussed in the slide, in these slides. Okay. सबसे पहले टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम हेड पार्ट बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग टाइटल में you see names the topic, the method and the population or setting and not just the general subject. याद होगा मैंने आपको बोला था कि आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं. कीवर्ड में भी आपको यह ध्यान रखना है कि कीवर्ड एक जनरल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल recently I was writing a paper. In that paper it was about how a startup ecosystem is working. Okay. अब एक पर्सन ये लिख सकता है कि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को ही टाइटल का पार्ट बना लूं, या दूसरा पर्सन ये हो सकता है जो ये मेंशन कर सकता है कि स्टार्टअप में भी मैं पर्टिकुलरली इस एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल एज बेस्ड और डोमेन बेस्ड मार्केट एनालिसिस. ये स्टार्टअप का मार्केट पार्ट का डिवीजन है, तो हमने उसको इस तरीके से सिग्निफाई मार्केट एनालिसिस लिखा, बट हमने एक एडजेक्टिव वहां जोड़ दिया जिससे वो स्पेसिफिक भी हो गया. सो आपको एक बहुत ही जनरल सब्जेक्ट नहीं लेना है. आपको अपने टाइटल को इतना भी स्पेसिफिक नहीं करना है कि वो सर्चेबल ना रहे. आपको एक ऑप्टिमम रास्ता, बीच का रास्ता पकड़ना है. यू हैव टू अवॉइड क्लेवर वर्ड प्ले. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऐसा कुछ भी मत लिखिए अपने रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर के टाइटल में, जो उसके लैंग्वेज के सिंटैक्स को इतना टफ कर दे कि मेरे को एक बार में देखते वक्त तुरंत वो समझ में ना आए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. A searchable title outlasts a memorable one. So you have to. अब आप रिसेंटली, पहले ये नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने आइडेंटिफाई किया कि जितने भी जर्नल्स हैं वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं एज ए पॉलिसी कि आप उनके द्वारा दिए गए कीवर्ड्स को ही प्रेफर करें. एंड ये भी जो लेटेस्ट है, फिट्स इन वन लाइन. पहले ऐसा रूल नहीं था. पहले एक सिस्टम था जहां आप एक 2 लाइन्स का सिस्टम, 2 लाइन का टाइटल डाल सकते थे. वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, जहां आप फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, फिर डॉट्स कॉलन लगा रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट लिख रहे हैं. अब वो भी खत्म हो गया. अब रिसेंट ट्रेंड ये है कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो एक लाइन का हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल वही स्टार्टअप वाला अगर दें तो उसका टाइटल था पहले 2 लाइन्स का, अब वो कन्वर्ट होके हो गया है सिंपली यूसेज ऑफ एआई इन द मार्केट एनालिसिस ऑफ स्टार्टअप्स. दैट्स इट. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड. मार्केट एनालिसिस कोई सर्च कर सकता है, स्टार्टअप कोई सर्च कर सकता है, एआई कोई सर्च कर सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से एक छोटा सा अब रिसेंट ट्रेंड ऐसा हुआ है. हो सकता है आने वाले 10 साल बाद चीजें और चेंज हो जाए. इवॉल्विंग फील्ड है. इसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में. यू हैव टू स्टेट द प्रॉब्लम इन जस्ट 1 or 2 sentences and you have to name the method and the data. अच्छा, यह एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है, नो थ्रोट क्लियरिंग. थ्रोट क्लियरिंग मीन्स, इस ईडियम का मीनिंग ये है रिसर्च में कि आप इस तरह के क्लेम, सेवरल रिसर्चर्स हैव डन दिस काइंड ऑफ अ वर्क एंड इट हैज बीन अ ह्यूज और अ लॉन्ग टाइम गैप आफ्टर विच दिस इज रिसर्च. आप देख रहे हैं, हाउ कुड यू क्लेम सच काइंड ऑफ थिंग? दिस इज कॉल्ड थ्रोट क्लियरिंग. जहां आप एक
ऐसे वेग स्टेटमेंट से अपने एब्स्ट्रैक्ट को मेंशन कर रहे हैं जिसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते। सो इफ इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड देन इट इज वेग। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको किसी भी थ्रोट क्लियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू फॉलो दैट पैक मेथड, जिसमें आप पहले प्रॉब्लम, फिर अप्रोच, एंड लास्ट में यू क्लोज विद द कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स व्हाट विल बी नोन दैट इजंट नोन नाउ। लाइक इन माय पीएचडी व्हेन आई हैव रिटन द एब्स्ट्रैक्ट, उसमें लास्ट लाइन सिर्फ यही है कि हम एक फॉर्मल ग्रामर बना रहे हैं, दैट्स इट। ये कंट्रीब्यूशन है। हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि ऐसा ग्रामर बना रहे जो पहले किसी ने नहीं लिखा। हम ये भी क्लेम नहीं कर रहे कि ऐसा ग्रामर बना रहे जिसमें कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं है। रिसर्च अपने आप में यूनिक होता है, बट क्लेम्स आपको यूनिक नहीं करने हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट में तो खासकर नहीं। वो रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके रिसर्च में प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अ गुड रिसर्च क्वेश्चन इज स्पेसिफिक, आंसरेबल एंड नॉन ट्रिवियल। पहले जनरली हम लोग ऐसा कहते थे कि स्पेसिफिक होना चाहिए और नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, बट आंसरेबल वर्ड क्यों यूज किया गया? अभी रिसेंटली हम लोग एक डिस्कशन में थे जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया और इस पे क्वेश्चंस भी उठ गए, और उसके बाद फिर स्पीकर का मतलब बहुत ही बेइज्जती आप कह सकते हुई। उनका ये था कि हम कंससनेस को एआई से रिलेट करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एआई आपको डेटा दे देगा, कंससनेस का पैरामीटर क्या होगा? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ह्यूमन कंसस है या कंसस नहीं है? तो ये देखिए, ये एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका आंसर नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन जो होना चाहिए वो आंसरेबल होना चाहिए। मतलब वो लोग भले विजुअलाइज ना कर पाए कि आप मेथड कैसे करोगे, बट दे have this trust that this is something which can be implemented. So it has to be specific, it has to be answerable, and it has to be non-trivial. जनरली रिसर्च क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ब्रॉडली नोन इन द फील्ड। देन बिकॉज यू हैव discussed about the field itself, so you are going to mention what is the latest development in that. So in that you will identify two things. One thing ये हो सकता है कि आप ये mention करो कि मैं इसी thread को continue करूंगा and I will add to those things which are unresolved. Or you will say no, I'm not going to do that. I'm going to contest or I'm going to find those missing things जिसको हम लोग loop करके आ चुके हैं। तो एक रिसर्च एक फॉरवर्ड रिसर्च भी हो सकता है, बैकवर्ड रिसर्च हो सकता है, वो गैप में आपको मेंशन करना होता है। देन फिर आप इस गैप के बेसिस में अपने क्वेश्चंस बनाते हो। जनरली 3 क्वेश्चंस कहे जाते हैं। एक मेजर क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी थीसिस थी अ फॉर्मल ग्रामर ऑफ हिंदी। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। इसमें अब मैं 3 सब क्वेश्चंस फिर से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही वेग थिंग है, राइट? अब मेरे को स्पेसिफिकली बोलना है। ओके, पहला क्वेश्चन, इस ग्रामर में आई एम गोइंग टू चेक कि प्रेडिकेट लॉजिक किस प्रकार से हिंदी के प्रेडिकेट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। और इसको सिंपल बनाते हैं बिकॉज ये सब टर्म आप मुझे नहीं लगता आप अवेयर होंगे। बहुत ही बेसिक बनाते हैं कि किस प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता है, पार्ट ऑफ स्पीच इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को। सेकंड, हम ये चेक करेंगे कि वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदी में किस प्रकार से डिवाइड होता है। थर्ड, हम ये चेक करेंगे कि जितने भी पोस्ट पोजीशंस होते हैं उनका क्या कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि हम एक फॉर्मल ग्रामर बनाएंगे, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ फॉर्मल ग्रामर ऑफ हिंदी। बट ये जो 3 चीजें हुई, ये स्टैंडर्ड है। जनरली मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो मैंने इंडिया में देखी है उसमें 3 का ट्रेंड है कि आपको 3 सब क्वेश्चंस फ्रेम। बोगस थिंग लोग लिखते हैं, बट लिटरेचर रिव्यू मतलब आप मेरे वर्ड को कहीं मार्क करके लिख सकते हैं जब भी आप पेपर लिख रहा हो तो अच्छा रहेगा। लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए नहीं लिखते कि हम ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम कौन हैं, बल्कि हम इसलिए लिखते हैं
कि हम ये शो करना चाहते हैं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, व्हाट इट मीन्स। जैसे ये मेरे गाइड ने मुझे समझाया था, मैं आपको बस ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मैं अपनी फील्ड में आइडेंटिफाई करता हूं कि 20 रिसर्चर्स हैं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि 20 ही हैं, बट मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 20 रिसर्चर्स हैं। 20 में मान लीजिए एक है आइंस्टीन और एक है माइंस्टीन। अगर मुझे कोट करना है, मुझे अपनी फैमिली शो करना है, तो मैं आइंस्टीन के वर्क को शो करूंगा, ना कि माइंस्टीन के। आई होप यू आर गेटिंग द फन पार्ट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मैं लिटरेचर रिव्यू के तरीके से ये शो करना चाहता हूं कि मेरी फैमिली कौन सी है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले किन रिसर्चर्स को साइट करना चाहते हैं, वो बताते हैं कि आपने किस फैमिली को या किस डायरेक्शन को अपने ओपिनियन से अलाइन किया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जब भी कमिटी आपका लिटरेचर रिव्यू पढ़ती है, दे आर नॉट जजिंग वेदर यू नो द फील्ड और नॉट, बट they want to know the latest development in that field। ठीक है, हमने आइंस्टीन को तो कोट किया, बट हमको जब हम आएंगे लेटेस्ट रिसर्च में, मान लो 2025 में, तो अगर कोई अननोन ऑथर भी है तब हम वहां उसको कोट कर देंगे। फैमिली भी शो हो गई और हमने लेटेस्ट भी दे दिया। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखें तो आपको कवरेज ऐसा नहीं रखना है कि आप पूरा एकदम से एक डॉक्यूमेंट ही बना दिए जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि कमिटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप रिसर्च क्या करेंगे। कमिटी जानना चाहती है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम लाई कहाँ करती है। Then you group the sources by theme and debate rather than summarizing the paper after paper। What it means, एक पर्टिकुलर थीम के कई सब थीम्स हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट पैरा वाइज उस थीम्स पे, ओके, इस थीम पे इस रिसर्चर ने ये काम किया, इस थीम पे इस रिसर्चर ने ये काम किया, इस तरीके से आप अपने आप को ग्रुप कर सकते हैं। कुछ लोग टाइम बेस्ड डिवीजन भी रखते हैं। कोई रूल नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, बट जनरली टाइम एक ऑनेस्ट अप्रोच नहीं है मेरे भी ओपिनियन में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने, अभी मैंने आपको बताया था, बैकवर्ड रिसर्च भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि रिसर्च हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सिक्वेंसली फ्लो हो। इसलिए टाइम बेस्ड रिसर्च शो करना या मेंशन करना या रिपोर्ट करना बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच नहीं। एंड देन गैप फाइंडिंग, you ends by naming precisely what the existing work has not yet answered। और आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, आप ये नहीं बताते कि आप उसको आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर दिया जाता है मेथोडोलॉजी में कि आप कैसे उस पर डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च डिजाइन में। रिसर्च डिजाइन में you have to mention whether you are going to follow experimental or empirical approach और comparative approach और qualitative approach, और जो जनरली सर्वे बेस्ड वर्क होते हैं जैसे मैनेजमेंट वाले जो करते हैं उनका क्वांटिटेटिव होता है। एंड देन यू आंसर व्हाई इट फिट्स द क्वेश्चन। लाइक मुझे याद है मेरे पीएचडी में जब मैं पीएचडी कोर्स वर्क कर रहा था तो मेरे सीनियर ने एक डेटा रिप्रेजेंट किया था, एक टेबल को एक डेटा में करके कन्वर्ट किया था। तो रिव्यू कमेटी में क्वेश्चन ही यही था कि आपने ये जो स्टैट कैलकुलेट किया है, 5 वैल्यू थी वो, उसकी जरूरत ही क्या है। तो उन्होंने पढ़ाया बता दिया कि 5 की वैल्यू अगर इतनी होती तो हम ये मानते कि हमारा प्रोपोजिशन सही है, 5 की वैल्यू। क्या जरूरत है मानने की? ये कैसे डोमेन नॉलेज से कनेक्ट हो रहा है? तो जब आप व्हाई इट फिट्स द क्वेश्चन बताते हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स के इस पार्ट को रिलेट करते हैं कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को करूंगा तो मैं ये आंसर आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। दैट्स हाउ यू जस्टिफाई कि व्हाई इट फिट्स द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में डेटा एंड सोर्सेस में यू स्पेसिफाई वेयर द डेटा कम्स फ्रॉम एंड एक्सेस मेथड। जनरली मेरी फील्ड का मुझे पता है, लिंग्विस्टिक्स में कॉर्पस होते हैं, तो हम लोग कॉर्पस, कौन से कॉर्पस यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं ये मेंशन करते हैं। जनरली मेथड ये रहता है कि कॉर्पस के साइज से हम लोग, तो आपके पास वो भी रीजन होना चाहिए कि आपने इसी कॉर्पस को क्यों चूज किया।
फिर आता है एनालिटिकल अप्रोच, यू डिस्क्राइब हाउ द डेटा विल बी एनालाइज्ड। उसके डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जो आपकी फील्ड में होंगे, ये फील्ड बाय फील्ड चेंज होते रहते हैं। सो यू जस्ट टेल हाउ डेटा विल बी एनालाइज्ड। एंड देन फिजिबिलिटी एंड रिसोर्सेस में कुछ क्वेश्चंस, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको लोग छोड़ देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिजिबिलिटी एंड रिसोर्सेस में कई बार ये बहुत स्मार्ट है, मतलब अगर कोई लिटरली एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखता है और पीएचडी में कहीं ज्वाइन करने वाला है, तो आई वांट यू टू इम्प्लीमेंट दिस। अपने रिसर्च के मेथोडोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मेंशन करो कि अगर मैं एक्स मेथड यूज करता तो मेरे वाई रिजल्ट्स आते, अगर मैं ए मेथड यूज करता तो मैं बी रिजल्ट लाता। नाउ आई एम अनश्योर कि वाई ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन है कि बी। यू सी, आपने रिसर्च पे ही रिसर्च क्वेश्चन पोज कर दिया जिससे आप अपने माइंड, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि यू हैव दैट रिसर्च एंथुजियाज्म वेयर यू आर नॉट जस्ट हैविंग अ फिक्स सेट ऑफ माइंड, but you are telling them that this research is going to be telling me that whether this is a best or feasible thing to be done for this particular domain or not. तो इस तरह के क्वेश्चंस पे जनरली अगर आप जब भी आप मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं तो लास्ट के एक पैरा पे अपने ही मेथोडोलॉजी पे इस तरह के क्वेश्चंस लिखिए। ये आपके इनोवेटिव, आपके वी कैन से रिसर्च बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, ये आपके रिसर्च को क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपके रिसर्च के बिहेवियर को शो कर रहा है। तो आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, बहुत पॉजिटिव जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो एक सेटअप लेके आते हैं, हाँ ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे और ये मिल जाएगा। क्या फायदा हुआ? वो बोलते हैं फायदा ये हुआ कि हमने ये कंट्रीब्यूट किया। क्या फायदा हुआ उस कंट्रीब्यूशन से? वो ये भी तो देखना चाह रहे हैं ना, एज ए कमिटी। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर किसी पीएचडी स्कॉलर को चयन करना है, तो मैं एक बार अगर उसका पीएचडी सुपरवाइजर बन गया तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरल और एथिकल भी रहती है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, या अच्छा जो भी लड़का लड़की जो भी है करे। राइट, हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन। मेरे को कभी पीएचडी के पॉलिसी में या प्रोसीजर में लिख के नहीं दिया गया। तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट दे शो दैट दे आर समथिंग, जिनको मेथड भी आता है और दूसरा उनके अंदर इस पार्ट की क्रिएटिव या क्रिएटिविटी है कि वो अपने ही मेथड को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये फिजिबिलिटी और रिसोर्सेस वाला पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं, I'll try to close this thing as soon as possible because 10 ही मिनट बचे हैं। टाइमलाइन एंड फिजिबिलिटी में ये बहुत ही ऑप्शनल थिंग है। यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो पूरा मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा अगर अक्षित को चाहिए तो, आप लोग को अगर जरूरत पड़े। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी टाइमलाइन आप मेंशन कीजिए लिटरेचर का, डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस का, जैसे डेटा कलेक्शन लिखा है 4 to 9 मंथ, राइट, बट ये कभी नहीं होगा कि 4 to 9 मंथ्स में आपका काम हो ही जाएगा। आपको अपने टाइमलाइन के बीच में एक बफर टाइम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक नंबर है, अब आप बोलेंगे हमने कहाँ रखा इसमें बफर? बफर इंक्लूडेड है बच्चों। जब हम 1 to 3 लिख रहे हैं तो लिटरेचर एंड डिजाइन में मेरे को 2 ही मंथ्स लग रहे हैं, जो 1 मंथ मैंने रखा वो मेरा बफर है। डेटा कलेक्शन में फोर्थ मंथ, सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, जो 9th मंथ है वो मेरा बफर है। तो हमेशा एक बफर रखना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग अ पर्सनल नोट। पहले जब मैं रिसर्च पेपर लिख रहा था, मैंने कई आईआईटीज में भी अप्लाई किया हुआ था, हर जगह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मैं लिख रहा था, जो खराब बात नहीं है, क्योंकि आपको कई बार इंडिया में पर्टिकुलरली ये सिनेरियो रहता है कि आपको वो रिसर्च करना होता है जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। तो जब आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक डिफरेंट प्रपोजल लिख रहे हैं, आईआईटी बीएचयू में कर रहे हैं तो अलग लिख रहे हैं, आईआईटी मद्रास में कर रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी में या किसी भी जेएनयू में कर रहे हैं तो अलग लिख रहे हैं, डीयू में लिख रहे हैं। तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं देखनी होती, आपको यूनिवर्सिटी में क्या काम चल रहा है ये देखना होता है। ये कैसे पता चलता है? प्रोफेसर की प्रोफाइल से। तो आप जब भी प्रपोजल लिखें, मेक श्योर कि आपने जो जो चीजें अभी मेरे साथ डिस्कशन में रहा
उसमें जो टर्निंग पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो चीज निकल के है। टर्निंग पॉइंट क्या है? रीराइटिंग टुवर्ड वन नैरो आंसरेबल क्वेश्चन एंड बिल्डिंग द टाइमलाइन बैकवर्ड फ्रॉम द डिफेंस डेट। डिफेंस डेट में बैकवर्ड क्यों लिखा है मैंने? जैसे मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनकी पीएचडी 7 साल तक 8 साल तक गई, पीएचडी उनकी भी कंप्लीट होगी, जॉब उनको भी मिलेगी, बट कमिटी इस तरह के सिनेरियोज को एक्सेप्शंस मानती है। इसलिए जो आपका टाइमलाइन होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, वो हमेशा बैकवर्ड डेट से रहेगा। जैसे अभी 2026 है, मान लीजिए मैं 2020 मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक हूं और मैं शो करता हूं कि मैं 2030 में मेरी पीएचडी हो जाएगी, तो मैं एक जो टाइमलाइन बनाऊंगा वो बैकवर्ड बनाऊंगा। 2030 में ये होगा, 2029 में ये होगा, 28 में ये होगा, 27 में ये होगा, 26 में ये होगा। और हर ईयर के में पर्टिकुलर स्पेसिफिक, याद है मैंने आपको बोला था 3 रिसर्च के सब क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप इन्हीं डेट्स पे डालते हैं कि 2023 में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, 2024 में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और 2030 में मैं ये सारे रिसर्च के कंक्लूजन को कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है? इसके बाद आते हैं कुछ पिटफॉल्स में, जो गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं। पहला, वेग रिसर्च क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्या है इसका तरीका? व्हाट इज द फिक्स? यू हैव टू नैरो द स्कोप अंटिल इट्स आंसरेबल, ओके, इन द प्रपोज्ड टाइम फ्रेम। अगेन आई एम reiterating द वर्ड आंसरेबल। कुछ भी ऐसा क्लेम मत करिए जो या तो टाइमलाइन के बियॉन्ड जा रहा हो, या आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको आंसर करने की। वो नॉलेज के बेसिस पे भी हो सकता है, वो फंडिंग के बेसिस पे भी हो सकता है, वो कोलैबोरेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। आपके प्रोफेसर ही 2 ऐसे हैं जिनको उस फील्ड का कोई ज्ञान नहीं, और आप ये थ्योरी लेके आ रहे हैं कि मैं पढ़ लूंगा और मैं आपको भी सिखा दूंगा, तो आप लिख लो कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू रीड्स एज अ लिस्ट। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ग्रुपिंग करके। जो मैंने आपको बताया 3 मेथड होती हैं ग्रुपिंग की। थीम्स के अराउंड अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको थीम्स के अकॉर्डिंग नहीं करना, तो आपने देखा कि पर्टिकुलर, जैसे एआई का पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी भी डिफरेंट डोमेन्स में जा सकता है, हेल्थ केयर में भी जा सकता है, वो वेपन्स में भी जा सकता है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी जा सकता है। तो आप डिफेंस में भी कुछ बता दिए, साइंस टेक्नोलॉजी में भी बता दिए, तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को इनके अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं। थर्ड, मेथड्स आर स्टेटेड बट नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड कहने का मतलब है जो भी आपने मेथड बताया, जो कंक्लूजन आप निकालेंगे, वो आप शो कर रहे हैं कि एक फिट है दोनों के बीच में, आपके मेथड में और आपके कंक्लूजन में। यही एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे कि कंक्लूजन इसलिए आया क्योंकि मैंने ये मेथड यूज किया, और क्योंकि मेरा ये मेथड था इसलिए मैं ये कंक्लूजन लेके आया। ठीक है? ऐसा कुछ। फिर इसके बाद टाइमलाइन इग्नोर्स द रियल कांस्टेंट। उसको सॉल्व करने का फिक्स ही है कि आप बफर जोन रखिए। एंड लास्ट, नो स्टेटेड सिग्निफिकेंस। हर पीएचडी के या हर प्रपोजल के एंड में लास्ट क्वेश्चन ये आता है। ऑलमोस्ट मैंने 99.9% जो फाइनल पीएचडी डिफेंस होता है उसमें ये सुना है कि तुम्हारी पीएचडी का कंट्रीब्यूशन क्या है। पूछते ही है। क्यों? क्योंकि 2 रिव्यू होते हैं जो फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और तीसरे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। बट उनको इसलिए नहीं बुलाया जाता कि इनको कुछ नहीं आता है, वो उन लोगों के बिहाफ में आए हैं जो उस फील्ड से अवगत नहीं है। एज अ नॉर्मल ऑडियंस, क्या आप उनको अपना रिसर्च समझा पा रहे हैं? इसलिए ऐसे लोगों को उस कमेटी में रखा जाता है। तो जब वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्टली 99.9% पूछेंगे, यू हैव टू से प्लेनली कि अगर ये वर्क सक्सीड होता है, सो व्हाट इट चेंजेस और व्हाट इट एड्स टू द डोमेन। ठीक है? और ये कुछ चेकलिस्ट है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें जब आप फाइनल आपका बन जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक प्रॉब्लम उठा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, कुछ भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं, उसमें चेक कीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ों को आप चेकलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर ये सब है, देन इट मीन्स यू डिड अ ग्रेट जॉब। Now, with that, I would like to thank you for your patience and listening this talk. I loved this interaction, and I hope I have answered all the questions which you have. But in case if you have any more, I'd be happy to work through it.
Thank you very much, Dr. Vivek Tripathi ji, for such an insightful, practical, and intellectually stimulating session. Your thoughts on research methodology, proposal writing, academic rigor, and scholarly excellence have undoubtedly provided valuable guidance to all the participants present today. Now, we move to the interactive segment of the program, the question and answer session. As Albert Einstein once remarked, the important thing is not to stop questioning. I invite all participants to make most of this opportunity. You may either use your hand raise option or post your questions in the chat box. I request everyone to keep their questions brief, clear, and relevant to today's topic. Tina ji, you can go ahead. Good evening, sir. Sir, I wanted to ask what are your thoughts on the use of AI in the research field? And what is your perspective, and how can it be used efficiently? Okay. अभी तो रिसेंट डेज में पीएचडी तक लोग एआई की मदद से लिख रहे हैं, बट I would never recommend that, because using AI is a different thing, but using AI to upgrade yourself, that is a different thing. You can use AI to scan maybe 100 of papers in a minute and find gaps. That is a productive use of AI. You can use it for data analysis, maybe coding है या आपका ग्राफ है या आप अपने statistics को जल्दी एनालाइज कराना चाहते हैं, तब आप AI का यूज कर सकते हैं. थर्ड, ग्रामर की क्लैरिटी. आज मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स ग्रामर के लिए AI यूज करते ही हैं, और इसके बाद पेपर लिखने के बाद वो एक नोट डालते हैं कि AI का हमने प्रयोग ये करने के लिए किया है. एंड लास्ट, आप अपने रिसर्च को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए भी AI का यूज कर सकते हैं. बट अगर इसके अलावा आप कोई भी यूज कर रहे हैं, तो या तो आप प्लेजरिज्म में पकड़े जाएंगे. और आज के डेट में आई वाज रिसेंटली वाचिंग अ न्यूज जहां आई हर्ड दैट क्लॉड इज गोइंग टू ऐड सम वाटर मार्क जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्लेजराइज्ड वर्क है. तो आने वाले टाइम पे AI जितना अभी इजी है उतना शायद आगे आने वाले टाइम पे नहीं होगा. बट फिर भी, क्योंकि आप लोग अभी रिसर्च को और AI के दोनों फील्ड में कॉमन पॉइंट पे खड़े हैं, तो आपके ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने लिस्ट किए, अगर इसमें जरूरत है तो प्लीज यूज करिए AI, क्योंकि इट हेल्प्स यू टू कल्टिवेट योर आइडिया इन अ वेरी पॉजिटिव वे. बट रिमेंबर, AI का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि व्हेन द सेम AI मॉडल इज बीइंग यूज्ड बाय लेट्स से 10 पीपल हु आर डीलिंग विद द सेम थिंग, AI is giving them same idea throughout. That kills the creativity. और आज के टाइम पे जब कमिटी मेंबर में लोग वो AI की लैंग्वेज समझ में आ ही जाती है, क्योंकि वो खुद भी यूज कर रहे हैं ना, राइट. सो AI की लैंग्वेज पकड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है. बट हाँ, आप अपने स्किल को, अपने एथिक्स को, अपने ऑब्लिगेशन को, व्हाई आई एम सेइंग ऑब्लिगेशन, बिकॉज रिसर्च मिलने के बाद आपको जो फेलोशिप मिल रही है, सो यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू अ गुड रिसर्च, राइट. उसको किल मत कीजिए. सो लिटरेचर रिव्यू हो, राइटिंग में हेल्प चाहिए हो, डेटा एनालिसिस हो, ग्रामर, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज गो विद इट, अदरवाइज मत करिए. Shivanya ji, you can go ahead. Thank you. Good evening, sir. Thank you so much for such an enlightening session. We really got to learn a lot. So, sir, I wanted to ask if there is a roadmap for uncovering what kind of research you want to do. As in, I have a few topics that I'm interested in, but what kind of problem I can identify, that sometimes becomes a challenge. That I need to identify a problem which is feasible, which is answerable, and which challenges me. तो इसके लिए कोई तरीका है कि हम अपना प्रपोजल बनाने की जर्नी को स्टार्ट कर सकें कि हाँ, मुझे ये टॉपिक अपने लिए सही लग रहा है. ओके, तो सबसे पहले ये एक्चुअली नॉर्मल है किसी भी रिसर्चर की लाइफ में, क्योंकि हम लोग के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं, बट कोलैबोरेशन की वजह से हमको पूरा एक नए टॉपिक पे स्विच होना है. तो ऐसे केसेस में जो मेथड होता है वो ये रहता है, जो मैंने अभी तक अपने सीनियर्स और अपने गाइड से देखा, कि वो उस फील्ड के, अब बहुत सारे रिसर्च इंजन्स हैं. रिसर्च इंजन्स कहने का मतलब ये है कि आप
वहाँ जाकर के रिसर्च पेपर ढूंढ सकते हैं। तो जैसे साइज स्पेस एक है जिसको मैं यूज करता हूँ, तो आप वहाँ उस फील्ड के लेटेस्ट पेपर डाउनलोड कीजिए, ओल्ड पेपर नहीं, क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी ओल्ड पेपर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को साइट करेंगे, तो वो हम अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट 5 साल के पेपर आप डाउनलोड कीजिए। मिनिमम पेपर का नंबर कुछ ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा है कि एटलीस्ट अगर आप 10 पेपर रीड कर लेते हैं तो आपको इनफ नॉलेज आ जाता है उस फील्ड का। तो सबसे पहला काम मैनुअल वर्क ये है कि एआई का यूज करके 10 पेपर डाउनलोड कीजिए। उन 10 पेपर से आप रिलेट कीजिए कि वो किस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई होगा लेट्स से कि 5 प्रॉब्लम्स हैं जिन पे उन्होंने काम किया। उन 5 में से आप सेलेक्ट कीजिए 2। क्यों? क्योंकि आपके जब 2 जिसके साथ भी आप काम करना चाह रहे हैं, हो सकता है पहला वर्क ना करे तो दूसरा बैकअप में काम करेगा। और जो भी आप चूज करेंगे, इनके भी जब 3-3 सब क्वेश्चंस बनेंगे, आपको याद होगा मैंने कहा था, तो आपके पास इन टोटल 6 क्वेश्चन बिल्डअप हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ द रिसर्च विल बिगिन। Thank you, sir. Khushi ji, you can go ahead. Thank you. Sir, my question is that the most international conferences where we do paper presentation, they ask you to submit an abstract before the paper is written. But conventionally, people write abstract after finishing the paper. So how can we write a strong abstract, one that can actually be selected when the paper isn't yet written? Okay, so there are 2 scenarios over here. One scenario, you have written the paper so that you have the abstract, and second, you don't have the paper, so you can't say anything about that in the abstract, right? So दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहला केस लेते हैं जब हमारे पास पेपर है। आप ट्रस्ट कीजिए कि 90% लोग, 90 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को जितने मिले हैं लोग आज तक जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कॉन्फ्रेंस में, सबने यही कॉमन अप्रोच यूज किया है। वो कभी भी अपने ओरिजिनल रिसर्च को पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो जो वो अब्स्ट्रैक्ट मेंशन करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम का बनाया हुआ अब्स्ट्रैक्ट है। उनका जो मेजर रिसर्च वर्क है जिसको वो पब्लिश करने वाले हैं, एक वर्किंग पेपर करके कंसेप्ट होता है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूं। जो उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा, मान लीजिए मेरा ये रिसर्च है पर्टिकुलर, मैं इसके पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम का अब्स्ट्रैक्ट फ्रेम करूंगा और वो मैं कॉन्फ्रेंस में जमा करूंगा। तो आप भी एज अ रिसर्चर ये प्रैक्टिस को अपना सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि सही में आपका रिसर्च बहुत यूनिक है, सही में आप एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम करना है, मतलब आपका एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनोवेटिव मेथोडोलॉजी, सब कुछ नया है। आप उसे अगर कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म में रिवील कर देंगे तो ये आपकी ग्रोथ, आपकी करियर के लिए नुकसान करेगा। तो पहला वाला ये सिनेरियो हो गया। तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, आपके पूरे पेपर का एक छोटा सेक्शन बनाना है और उसका अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, राइट? प्रॉब्लम का भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मेरे को एक कंप्यूटर बनाना है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब मैं पेपर प्रेजेंट करूंगा तो मैं इसके सारे कंपोनेंट्स में से कोई एक ऐसा कंपोनेंट भी हो सकता है ना, जैसे कीबोर्ड, a keyboard contributing to the formation of a computer, so I'm going to deal with the problems, make an abstract around the keyboard, right? अब हर फील्ड में डिपेंड करेगा उसके क्वेश्चन एंड आंसर के, ये बहुत ही मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया था। सेकंड है कि आपके पास पेपर भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। मेरे मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो पब्लिश हुए हैं, अभी रिसेंटली पब्लिश एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ है जिसका पेपर मैंने अभी तक लिखा भी नहीं है। उसमें मेथोडोलॉजी क्या होती है, आज के टाइम पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा पब्लिशर आया है, ठीक है, स्कोपस का है, डिफरेंट इंडेक्सिंग सिस्टम होते हैं। तो जो बड़े इंडेक्स के हैं, ठीक है, अभी मैं आपको लेबल्स में नहीं उलझाऊंगा, जो बड़े इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते, Q1, Q2, Q3 अगर आपने सुना हो, उनके जो पब्लिशर हैं, अगर उनका कोई ऐसा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है और जिसमें वो इनवाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे को तो नहीं पता कि वो क्या इनवाइट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस फील्ड में, प्रोवाइडेड एकदम ही अलग ना हो, उनके थीम के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च करके, अभी किसी मैम ने क्वेश्चन पूछा था, वो मेथड यूज करते हुए कि हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं उन 5 पेपर से जो 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुए थे, उन 2 क्वेश्चन पे अपने अब्स्ट्रैक्ट को फ्रेम करूंगा सो दैट आई गेट द सिलेक्शन।
एक बार सिलेक्ट हो गए, ठीक है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो गया, चाहे कॉन्फ्रेंस के लिए हो, चाहे पब्लिशर के लिए हो, चाहे जर्नल के लिए हो, चाहे बुक के लिए हो, जिस भी जगह एक बार सिलेक्ट हो गए, एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो गया, अब उस एब्स्ट्रैक्ट को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, उसके लिए मैं काम करना चालू करूंगा। तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द पेपर्स हैं वो जनरली इसी अप्रोच में रहते हैं कि मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ पास गैप है या कहाँ पास रिक्वायरमेंट आ रही है, और मैं फिर उस फील्ड में, हाँ एकदम ही अलग नहीं होना चाहिए। आप ह्यूमैनिटीज के हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं मेडिकल फील्ड का पेपर लिखूंगा, तो ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है। मतलब चीजें जो वैलिडेट की जा सकें, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर के एंड में अबाउट ऑथर भी मांगा जाता है। अबाउट ऑथर में आप ये शो कर सकें कि आप एक क्रेडिबल पर्सन हैं, कि आपके ओपिनियन को, आपके रिसर्च को लिया जाए रेस्पेक्टफुली, इसलिए अबाउट ऑथर मांगा जाता है। तो जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेरी। Sir, there is one more question from Adrija ji. They're asking, should we adjust our proposals before applying to different institutes to suit the supervisor's interest? It is not something which is where I can show opinion. The thing is that it is the must thing. You should do it. Suppose you are pitching me a proposal and I am not able to connect with it. Why I would take the risk of taking you and identifying something which I have never connected with? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये बात समझिए कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पीएचडी का, तो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, प्रोफेसर के साथ, राइट, डिग्निफाइड रिलेशनशिप है। तो वो हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में बात होती रहे। वो आप कोई ऐसा रिसर्च ना कर रहे हो जो उनको ना समझ में आए, तो 5 साल कैसे बीतेगा किसी को नहीं पता है। तो वो बहुत ही मतलब ट्रबलिंग टाइम हो जाता है दोनों पार्टी के लिए। मतलब दोनों एक दूसरे को, आपको मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि सुपरवाइजर ही नहीं हेल्प करता है। पॉइंट ये है कि तुम तो ये क्लेम कर रहे हो कि सुपरवाइजर हेल्प नहीं करता है, बट प्रॉब्लम सुपरवाइजर नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम सुपरवाइजर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे? उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अभी मैं ह्यूमन बिहेवियर को आउटसाइड रखता हूँ सिनेरियो से। आपका प्रपोजल ऐसा था, आपका प्लान ऐसा था, आपका मेथड ऐसा था, आपका डोमेन ऐसा था, आपका कंक्लूजन ऐसा है जो जिससे वो रिलेट नहीं कर रहा है। इसलिए आपको जब भी आप किसी प्रपोजल को बना रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू कस्टमाइज इट एज पर द expertise of the next person. Yes, Sujit, you're asking something? Sir, namaste. Namaste. Sir, in research on religious or tantric traditions, because my subject is focusing on that, if the study adopts a phenomenological and self-hermeneutical approach in which the researcher's own subjective experience becomes an important source of interpretation and information, so how should such experiential knowledge be academically validated? Good. This is really something which I would how love it to should be answer. maintained scholarly interpretation from purely personal experience. Actually, that is the main problem I am facing while writing, because I couldn't able to cite or something, but the idea is coming naturally. If they are asking for any citations or the references, I don't have, because it's coming from my experience only. It's a kind of emic perspective I am using. Okay. So in that case, दो चीजें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसे फेनोमेना या ऐसे सिस्टम या ऐसे उसमें डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपके डेटा कलेक्शन के पॉइंट है उसमें से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो आप सर्वे के रूप में उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको एज ए रिसर्च पेपर क्लेम ही ना करें। जनरली लोग क्या करते हैं कि उसको एज ए, इधर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको रिपोर्ट करते हैं एज ए शॉर्ट पेपर और एज ए चैप्टर।
ठीक है जी। शॉर्ट पेपर कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी थ्योरी कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हाँ इससे कोई बहुत बड़ा चीज होने वाला है। वो सिर्फ ये क्लेम जी कर रहे हैं कि ये दिस इज नॉट द एविडेंस आई एम प्रोवाइडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, रेदर माय एक्सपीरियंस इज सपोर्टिंग दिस थिंग। ये देखिए ठीक टोटली है आइडिया चेंज हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमने जी एक्स वाई जेड चीज एक्सपीरियंस किया, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि एबीसी होती है तो उस एबीसी को हम्म। सपोर्ट करने के लिए हम ये चीज लिख रहे हैं। तो उसको आप शॉर्ट पेपर में लिख सकते हैं ताकि लोग ऑब्जेक्शन अगर क्लेम भी करें तो लॉन्ग पेपर में ऑब्जेक्शन ज्यादा होते हैं, शॉर्ट पेपर में कम होते हैं। दूसरा, शॉर्ट पेपर की जगह आप चैप्टर्स लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जिनको पता है कि ऐसी कई सारी फील्ड है जहां पर रिसर्च करना, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप ये कैसे नापेंगे कि जो बच्चा बीटेक के थर्ड ईयर में है और बीटेक के फोर्थ ईयर में है उसका ज्यादा स्ट्रेस है इन कंपैरिजन टू वन जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में है? नहीं है, राइट? ये जी स्ट्रेस जी मैनेजमेंट ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस का फील्ड है। तो ऐसे केसेस में लोग इस तरह के रिपोर्ट को जी कंपाइल करके उसको चैप्टर के फॉर्म में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था, सिमेंटिक फ्रेमवर्क में बनाना चाहता था जिस फ्रेमवर्क में मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि कोई डेटा क्रिएट किया जा सके। तो मैंने वहां सर एक्सपीरियंस नहीं प्रेजेंट किया, मैंने उस एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट किया एक फ्रेमवर्क में और मैंने बोला मैं ये फ्रेमवर्क बताना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, ठीक है सर। you discussed about the same thing but you package it in a different way. थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, there is another question in the chat box by Dorin Ji. They're asking how to identify or choose the nearest relatable subtopics from my research problem so that I don't reveal my entire research paper in any paper presentation conference. Okay. So relatable subtopics के लिए तो I would say the best method is to divide your research into different thematic zones. और उन जोन्स में जैसे मान लीजिए आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं एक टेबल, मेरा पेपर है कि मैं टेबल डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? बहुत ही बेसिक एग्जांपल एनालॉजी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके सब टॉपिक्स में डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिलेट किया था पिछले क्वेश्चन में भी। इसका एक अपर फ्रेम है, इसके छोटे छोटे जो भी लेग्स हैं वो है, इसका एक पेंट मेथड है। तो आप सबसे पहले उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बड़े सिस्टम के चीज को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दें। दूसरा अप्रोच जो मेरे गाइड जो फिलॉसफी से हैं उनका अप्रोच था, वो बिलीव करते थे कि डोंट dissect your problem into these things, rather you dissolve the problem into different sections। जैसे डिसॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे आपका एक सॉल्यूशन होता है वो एक डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्स होता है, राइट? लेकिन अगर मैं उसको अलग करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें एक मान लीजिए शुगर का एलिमेंट है, एक सॉल्ट का एलिमेंट है, एक कोई कलर है और कोई एक वाटर एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला अप्रोच। सेकंड वाला अप्रोच ये कहेगा कि मैं उसके वाई को आइडेंटिफाई करते 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 उसके एंड पॉइंट तक जाऊं। और मेरे गाइड का एक फेवरेट एग्जांपल है कि आप कोई भी दर्शन उठा लो, जैसे सांख्य दर्शन, आई होप आपको पता हो, एक सांख्य करके दर्शन है। इसमें बड़ा बड़ा इजली से मैं समझा पाऊंगा। उसमें 24 तत्व हैं। पॉइंट है कि 24 तत्व क्यों हैं? क्योंकि वो जब 2 तत्व लिए तो वो उन प्रॉब्लम्स को आंसर नहीं कर पा रहे थे जो था। तो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आंसर कर पा रहे थे, व्हाई? तो उस व्हाई को आंसर करने के लिए उन्होंने इन 2 को और 2 में डिवाइड किया। फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी वो उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, प्रॉब्लम था क्यों नहीं कर पा रहे, तो उनको और डिवाइड किया। ऐसे करते 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 वो एंड में 24 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किए। तो कई बार आप रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च के सब टॉपिक्स को इस अप्रोच से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। I hope that was helpful. I hope Dorin, I hope that was helpful. Do you have any more questions related to this?
You can go ahead, Kavita ji. Good evening, sir. Sir, my question is to you as someone who is just starting their research journey or as a beginner. So, can you suggest few sites which could be helpful in the research process and journey? सबसे पहले तो कुछ मैं बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। इनको आप पहले टर्मिनोलॉजी जानिए जिसे बोलते हैं हम लोग इंडेक्सिंग सर्विस और रिसर्च डेटाबेस, ठीक है? तो कुछ हैं रिसर्च डेटाबेस जो पॉपुलर हैं, वहाँ आप किसी भी फील्ड के रिसर्च को ढूंढ सकते हैं। एक है साइलिट, SCILIT, ठीक है? दूसरा है एरिक, ERIC। ये सब आप गूगल करेंगे तो आपको उनका डेटाबेस मिल जाएगा, वहाँ सिर्फ रिसर्च पब्लिश होती है। तीसरा है जी स्कॉलर, गूगल स्कॉलर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है सेमेंटिक स्कॉलर। फिर इसके बाद आता है वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस एक स्टैंडर्ड है IITs में, जहां अगर आपका पेपर वेब ऑफ साइंस में आया है तो आपको PhD मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है साइंस ओपन। और फिर है आर्क्सिव, ARXIV, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का ये डेटाबेस है, ARXIV। फिर एक है बेस, और एक लास्ट में मेंशन करना चाहूँगा कोर। ये रिसर्च डेटाबेस हैं, रिसर्च टूल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। टूल्स में AI के डिफरेंट टूल्स भी हैं, अब हैं जहाँ पास इन पेपर्स को ये लोग क्या करते हैं, इसी डेटाबेस से उठाते हैं और जो भी आपने कुछ डिस्कशन उसमें डाला है टूल्स में, जैसे डायमेंशन AI करके है, वहाँ पास आप इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो वो पेपर ही वहाँ से लेके आते हैं डेटाबेस से और आपके साथ डिस्कशन क्रिएट करते हैं। बट अगर आपको सिर्फ पेपर देखना हो तो आप इन डेटाबेसेस में जा सकते हैं। Also, one more Thank thing. you, sir. Just one more thing I would add. मैंने अपनी PPT में ये मेंशन नहीं किया कि रिसर्च पेपर को आप लिखते वक्त, तो एक वेबसाइट है, चाहें तो रिसर्च प्रेजेंटेशन का वो भी पार्ट है, अभी जस्ट क्लिक हुआ मेरे को। आप अपने पेपर को अगर लेटेक्स में लिख सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। लेटेक्स का प्लेटफॉर्म overleaf.com है, और एक और मैं आपको बताता हूँ जहाँ learnlatex.org है। रुकिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। Oh, you are not allowed to share. Okay, so I cannot share, so I will just add this link to the chat box. यहाँ पास सब कुछ बना बनाया कोड दिया हुआ ऑलरेडी, आप इसको भी सीखिए। रिसर्च पेपर जो लेटेक्स में लिखे जाते हैं, लेटेक प्रोनाउंसिएशन भी है, लेटेक्स भी है, आपको जो भी बेटर लगे। मेरे गाइड लेटेक बोलते थे इसलिए मेरी आदत लेटेक हो गई है, बट कंप्यूटर साइंस वाले लेटेक्स बोलते हैं। तो इसमें सब कुछ बना हुआ है, सेक्शन वाइज पूरा डिवीजन दिया हुआ है कि आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट सीधे कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो कॉपी पेस्ट करके आप ओवरलीफ में कॉपी पेस्ट करिए और आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो ओवरलीफ में टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। तो जब भी आप रिसर्च पेपर लिखिए, अगर आप लेटेक्स में लिख रहे हैं तो इसका इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है। ये सब टू यू। As we come towards the end of today's session, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who made this discussion possible. On behalf of Dakshi, I extend my sincere gratitude to our esteemed speaker, Dr. Vivek Tripathi ji, for sharing his valuable knowledge, experiences, and insights with us. Your guidance has illuminated the path for many aspiring researchers and scholars. I also express our heartfelt gratitude to Sri Akshat Kumar Bhadoria ji, Director of Dakshi, for his visionary leadership and continuous encouragement, the Dakshi executive team and organizing committee for their dedicated efforts, Prachi ji for the beautiful Saraswati Vandana, every participant who joined us today and contributed through their presence and engagement. As the Upanishadic prayer reminds us,
Tamso Ma Jyotirgamaya, lead us from darkness to light. May today's session inspire us to pursue knowledge with greater sincerity, curiosity, and purpose. Thank you all for being a part of this wonderful learning experience. Now, lastly, to conclude today's program in the spirit of gratitude and devotion towards our motherland, I invite Prachi to lead us with Vande Mataram. I request everyone to stand on their places. I'll start. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Syamalam, Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsnam Pulakitayamini, Fullakusumita Drumadalashobhini, Suhasini Sumadhurabhashini, Sukhdam Varadam Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kantha Kal Kal Ninad Karle, कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले, के बोले माँ तुम्ही आवले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरं, वन्दे मातरं। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही रिधी तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी वेद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जय हिंद, जय दाक्षी। Thank you everyone. Jai Hind, Jai Dakshin.